محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. محکمہ طب کی جانب سے گھر گھر سروے کرتے ہوئے کورونا مریضوں کی نشاندہی کی جائے اور آئسولیشن کٹ فراہم کی جائے. تمام ضلع کلکٹرز کو چیف سیکرٹری سمیش کمار کی ہدایت. نو منتخبہ بودھن بلدی کونسلر ڈویژن 18 کی رکن اسمبلی شکیل عامر سے ملاقات اور ان کی اس کامیابی پر دی مبارکباد. عوام کی خدمت میں کام کرنے کی ہدایت. کورونا وبا کا اثر، محکمہ پولیس کی جانب سے احمدی بازار ماہ رمضان کی خصوصی مارکیٹ برخاست. غریب و چھوٹے تاجرین پریشان. کورونا سے بے خوف عوام خریداری میں مصروف. ایک جانب مریضوں کو اموات کی شرح میں اضافہ تو دوسری جانب شہر کے کاروباری علاقوں میں عوام کا ہجوم. آندھرا پردیش کے رہنے والے غریب والدین نے اپنی لڑکی کے علاج کے لیے متحدہ ضلع MLC کے کویتا سے لگائی مدد کی گہار. انسانیت کی مثال پیش کرتے ہوئے MLC کویتا نے لی علاج کی ذمہ داری. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. نو منتخبہ بودھن کونسلر گنگا رام کی MLA شکیل عامر سے ملاقات. مجلس بلدیہ بودھن وارڈ نمبر 18 سے گزشتہ ضمنی بلدی انتخابات میں منتخب ہونے والے TRS کونسلر مینیجر گنگا رام نے TRS قائدین کے ہمراہ بودھن MLA شکیل عامر سے ان کی رہائش گاہ واقع حیدرآباد ملاقات کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا، جس پر MLA شکیل عامر نے نو منتخبہ کونسلر گنگا رام کو انتخابات میں شاندار کامیابی پر مبارکباد دی اور مٹھائی کھلائی. اس موقع پر TRS قائدین گنگا ریڈی، میر الیاس علی، عبد الرحمان نرسیا، گنگا ریڈی، سرپنچ کرشنا و دیگر نے شرکت. کووڈ ٹیکہ اندازی کے لیے آن لائن رجسٹریشن ضروری. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے بتایا کہ کووڈ ویکسین ٹیکہ اندازی کے لیے آن لائن رجسٹریشن کرانے والے افراد کی ہی ٹیکہ اندازی کی جائے گی. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے بتایا کہ 45 سال عمر یافتہ افراد کووڈ ایپ پر اپنا نام، پتہ رجسٹریشن کرائیں اور انہی کی ٹیکہ اندازی کی جائے گی. رجسٹریشن کے بعد تاریخ اور مقام کے بارے میں انہیں اطلاع دی جائے گی. ضلع میں جملہ 42 سینٹر سے ٹیکہ اندازی کے لیے اپنی مرضی کے مطابق سینٹر انتخاب کر سکتی ہے اور منتخب سینٹر میں ہر روز صبح 10 بجے سے 4 بجے تک ٹیکہ اندازی کی جائے. انہوں نے مزید بتایا کہ 18 سال مکمل کرنے والے افراد کے بارے میں ابھی کوئی احکامات حکومت کی جانب سے جاری نہیں کیے گئے ہیں. حکومت کی جانب سے احکامات کی شائع کے بعد ان افراد کی بھی ٹیکہ اندازی کی جائے گی. مرے تو کیسے، بھوک سے یا کرونا سے؟ غریب کاروباری طبقہ کشمکش کے عالم میں احمدی بازار میں کرونا وبا کے سبب عارضی بازار کیا گیا بند. ہر سال ماہ رمضان کے موقع پر احمدی بازار میں ایک خصوصی بازار لگایا جاتا تھا، جہاں غریب تاجرین عارضی دکانوں کو قیام کرتے ہوئے اپنی اشیاء کو فروخت کیا کرتے تھے، جس سے وہ اپنی عید اپنے افراد خاندان کے ساتھ خوشی سے منا سکے. لیکن اس بار کورونا وبا کے مد نظر یہ عارضی بازار قیام تو ہوا، لیکن محکمہ پولیس کی جانب سے ہدایت جاری کرنے پر گزشتہ شب اس کو برخاست کر دیا گیا. اس موجودہ دور میں بھوک اور کورونا کے درمیان جاری جنگ میں کورونا وبا کی جیت ہوئی. واضح ہے کہ موت تو دونوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں تمام بازار کھلے ہیں تو صرف اس عارضی بازار کو ہی کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ نظام آباد کے بادشاہوں کو خود کو میرا سلام. یہ جو روڈ پہ
अपने फ्रूट मार्केट और स्वीट के छापा है, बेंगल छाप है, दूसरे छापा है, ये सब लगा के है। इसकी वजह से ट्रैफिक आने जाने को वाले को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए वो छाप वालों को सबको गुजारिश करके उनके छापा जो सामने है वो पीछे हटाने लगा रहे और ट्रैफिक रेगुलर ट्रैफिक कैसा चलता हुआ था चलने के लिए जैसा कर रहे। आप लोगों को सबको मेरा गुजारिश है, आप थोड़ा समझ जाइए, समझ जाके आपके छापा जो है जरा पीछे ले लीजिए। दूसरा आम पब्लिक का जो ट्रैफिक है उनको क्लियर रख दीजिए। ये जो रमज़ान है 2 दिन 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बाद में और जैसा वैसा देखेंगे, मगर फिर का तो किसी को तकलीफ नहीं हो देता। तो बकरा मार्केट अराजी पर दावेदारी पेश करते हुए चंद अफराद की जानिब से किया गया धरना मुनज़्ज़िम महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को किया गया पुलिस स्टेशन मुंतकिल। निज़ामाबाद के इलाका अहमदी बाजार बकरा मार्केट, जहां पर हुकूमत की जानिब से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर जारी है। इस अराजी पर अपनी मलकियत का दौरा करते हुए चंद अफराद की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था, जो तेलंगाना हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है और इनके पास स्टे ऑर्डर भी मौजूद होने के बाद भी महकमा बल्दिया की जानिब से तेजी से जारी काम को रुकाने के लिए मुसलसल इनकी जानिब से कोशिश जारी है। और आज मोइनुद्दीन, जिनके विरसा विनोद व दीगर ने यहाँ पर पहुँचते हुए एहतजाज मुनज़्ज़िम किया, जिस पर महकमा पुलिस की जानिब से इन तमाम को हिरासत में ले लिया गया। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। कई के वास्ते अरेस्ट कर रहे हो यार, जगह हमारी है, उनको केस नंबर 1 डाले, देख ले वो लोग कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में जुलूम कर रहे, ये गवर्नमेंट लैंड नहीं होती, प्राइवेट लैंड है, केस नंबर भी डाले, पूरे फ्लैक्स लगाए, देख लो वो लोग। लेकिन पुलिस वाले हमें कहीं को लेके आते हैं, इसमें सिविल मैटर में बाबू नाम है, प्रॉपर्टी मोइनुद्दीन बाबू का नाम है ना, ये मोइनुद्दीन साहब का है, हमारा बरदाला है, वही तो बड़ा बोल के बड़ा सीधा झूठ से बात कर बोल के था। तो 1928 में मोइनुद्दीन चौधरी ये लैंड खरीदे, मोइनुद्दीन चौधरी ये लैंड खरीदे, बाद में मार्केट 34 में बनाए तो मार्केट के बारे में 400 गज के बारे में केस चला, కేసు నడిచినాక మొయిదీన్ చౌదరి గెలిచినాక 54 రూపాయలు ఇవ్వాలని కలెక్టర్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది। మొయిదీన్ చౌదరి 54 రూపాయలు తీసుకోలేదు, 54 రూపాయలు ఇప్పటిదాకా 54 రూపాయలు తీసుకోలేదు। 3 बार दिए, टाउन में भी दिए, उन्होंने नहीं ले रहे, समझे ना, सर्कल साहब नहीं ले रहे हमारा कॉम्प्लेट, फिर उनका कॉम्प्लेट कैसा ले रहे, उन्हें बोलता आ रही पुलिस, और उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी 2 महीने अभी तक कोर्ट में कोई सबमिट नहीं करे, हमारा वकील बोल रहा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं है, खाली तुम्हारे पास जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने जुल्म करने से तुम जमीन पर जाके बैठकर वो काम रोको, कुछ भी उसका नतीजा निकलता बोल के जैसा बोले तो हम बैठे। हाईकोर्ट जज से चल रहा है, हाईकोर्ट में केस चल रहा, उनको दम है तो वहाँ डाल के कोर्ट में जवाब दो, बोलो दम रहे तो उनकी जमीन रहे तो है ना। तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल बराए तलबात आरमूर में दाखिले। तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल बराए तालिबात आरमूर के प्रिंसिपल नसीमुन्निसा बेगम ने एक सहाफती बयान में कहा कि आरमूर के तमाम अवाम को इत्तला दी जाती है कि अकामती स्कूल आरमूर तालिबात में 5वीं से 8वीं जमात तक दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। इस स्कूल में 80 नशिस्तें खाली है, जिसमें 60 नशिस्तें मुस्लिम माइनॉरिटी और 20 नशिस्तें दीगर तबकों के लिए है और दाखिले की आखिरी तारीख 20 में है। इस ज़िम्न में आरमूर और हल्के अतराफ अकनाफ के मंडल के सरपरस्तों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने में पहल करें। अकामती स्कूल में बुनियादी सहूलतों जैसे यूनिफॉर्म, किताबें, क़याम फ़ताम वगैरह का मुफ्त इंतज़ाम है। काबिल असातिज़ा की निगरानी में बच्चों को असली तालीम के अलावा खेल कूद व डिजिटल क्लासेस, अरबी तालीम और 5 वक्त की नमाजों का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। मज़ीद मालूमात के लिए प्रिंसिपल मैडम से फ़ोन नंबर 7995057941 से रब्ता करें। हिजरा सूद के पुरकशिश मनाजिर पहली बार आश्कार। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हिजरा सूद सबसे काबिल एहतराम पत्थर है। इस मुक़द्दस पत्थर को अल्लाह ने अपनी निशानी के तौर पर आसमानों से उतारा था। हर हाजी और उम्रा ज़ायर की कोशिश होती है कि
तवाफ़ काबे के दौरान हिजरा सूद को बोसा देने की सादत जरूर हासिल कर ली। ताहम हुजूम के बाइस बहुत कम लोग ही इतने खुश नसीब साबित होते हैं। मौजूदा कोरोना वबा के दौरान हुजूम कम होने के बावजूद ज़ायरीन और मुतमरीन को हिजरा सूद को बोसा देने की इजाज़त नहीं है। ताहम अब हिजरा सूद की ऐसी शानदार तस्वीर सामने आ गई है जो इससे पहले कभी आपने नहीं देखी होंगी। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने तस्वीर उतारने की जदीद तरीन टेक्निक को इस्तेमाल में लाते हुए हिजरा सूद को इसकी इंतहाई बुनियादी तफसील के साथ पहली मर्तबा पेश करने का एजाज हासिल कर लिया है। फोकस स्टेट पिनोरामा टेक्निक के इस्तेमाल से हिजरा सूद ज्यादा मुख्तलिफ जावियों से ज्यादा वाज़ी और नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। मुनफरिद टेक्नोलॉजी को बरवेकार लाते हुए हिजरा सूद की पेश करदा तस्वीर उतारने में 7 घंटों का वक्त सर्फ हुआ। इस मुद्दत के दौरान इस मुक़द्दस पत्थर की 1050 तस्वीर उतारी गई, जिनकी रिजर्वेशन 49,000 मेगापिक्सल से उन्हें 50 घंटे से ज्यादा वक्त लगाकर क्रॉस किया गया। हिजरा सूद काबा शरीफ जुनूब मशरक़ी कोने में बाहर की सिमत पाया जाता है। इसी मुकाम से तवाफ का आगाज इख्तिताम होता है। ये जमीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पर नस्ब किया गया है। हिजरा सूद का रंग सुर्खी माइल सियाह है और इसका अंदरूनी हिस्सा प्याले की तरह है। हिजरा सूद को चारों तरफ से खालिस चांदी के फ्रेम से तैयार किया गया है ताकि इसे महफूज रखा जा सके और पत्थर की जगह बेज़वी शक्ल में दिखाई देती है। हिजरा सूद पत्थर की 8 छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिसे दिन में 5 मरतबा बेश कीमत अतरियात से मुआतिर किया जाता है। हिंदुस्तान से सऊदी अरब को गैर मुल्कियों की आमद पर हुनूस पाबंदी। सऊदी वज़ारत दाखिले की जानिब से इतवार 2 मई 2021 को जारी बयान में सऊदियों के लिए सफरी पाबंदियां हटाए जाने की मशरूत इजाज़त का ऐलान किया है। ताहम इस ऐलान में ताहाल गैर मुल्कियों की ममलिकत आमद के हवाले से कोई बात नहीं की गई। बयान में सऊदी शहरियों पर सफरी पाबंदी हटाने को कहा गया है। वज़ारत दाखिले का कहना था कि वो सऊदी शहरी जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें सफ़र की मशरूत इजाज़त होगी। ममलिकत से जाने के लिए गैर मुल्कियों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी और न अब है। अलबत्ता कोरोना से मुतासरा 20 ममालिक से गैर मुल्कियों की ममलिकत आने पर पाबंदी बदस्तूर आयद है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। इसी पाबंदी के तहत हिंदुस्तान से सऊदीया को फ्लाइट्स बंद है। वबा की संगीन सूरत हाल में भी बाजारों में हुजूम तशवीशनाक। जिले निजामाबाद में ताहाल 46,996 अफराद कोरोना से मुतासिर, एहतियाती तदाबीर निहायत जरूरी। दूसरे मरहले के कोरोना की वबा जिले में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और जिले में 50,000 के करीब पॉजिटिव केसेस सरकारी तौर पर दर्ज किए गए। पहले मरहले की वबा से भी ज्यादा दूसरे मरहले वबा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। न सिर्फ शहर बल्कि देही सतह पर भी पॉजिटिव केसेस दर्ज हो रहे हैं। जिले में अब तक 46,996 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा निजामाबाद डिवीजन मुतासर, इसके अलावा आरमूर बोधन डिवीजनों में भी वबा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गुज़िश्ता साल पहले मरहले में मार्च के तीसरे हफ्ते में जिले में पहला केस दर्ज हुआ था। वबा शिद्दत इख्तियार करने के बावजूद भी लॉकडाउन की वजह से वबा फैलने से रोका गया था और लॉकडाउन में नरमी के बाद फरवरी तक भी वबा का कोई असर नहीं देखा गया था और फरवरी तक भी जिले में 99 केस दर्ज किए गए। अचानक मार्च से वबा में शिद्दत पैदा हो गई और मार्च में 927 अफराद मुतासिर हुए थे और माह अप्रैल में 9,182 अफराद वबा से मुतासिर हुए और दूसरे मरहले की वबा निजामाबाद डिवीजन में शिद्दत इख्तियार की हुई है। जिले में जुमला 3,17,662 अफराद के रैपिड टेस्ट किए गए। इनमें से 27,666 नेगेटिव रिपोर्ट पाए गए थे। 46,996 मुस्बित केसेस दर्ज किए गए और इनमें सबसे ज्यादा निजामाबाद डिवीजन के 16 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और अर्बन हेल्थ सेंटर में 24,692 केसेस दर्ज किए गए। आरमूर डिवीजन में 12,453, बोधन डिवीजन में 9,851 केसेस दर्ज किए गए। निजामाबाद डिवीजन में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल और विनायक नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 1,815 और सिरकुंडा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 473, आरमूर में 1,677, पोचमपाड़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में
397, बोधन सरकारी दवाखाने में 2278 और रुद्रपुर में 540, कोटगिर में 516 केसेस दर्ज किए गए। शहर में खून की खिल्लत पैदा होने का इम्कान, नौजवान वैक्सीन लेने के लिए आइंदा 3 माह मुश्किल के होंगे। कोविड-19 वबा ही कुछ कम फिक्र वाली नहीं है, जबकि खून की किल्लत दवाखानों और मरीजों के लिए बड़ी तशवीश की बात बन गई है, जो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। आने वाले महीनों में खून की तलब में इजाफा मुतवक्किल है, जबकि खून का अतिया देने वालों की तादाद में बहुत कमी हो गई। शहर हैदराबाद में एक साल में तकरीबन 2.5 लाख यूनिट्स खून की जरूरत होती है, लेकिन ये तलब दुगनी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोविड मरीज जल्द सेहतियाबी के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर इन्हें कर रहे हैं। इसके अलावा तलिस्मिया, एनीमिया के मरीजों और सड़क हादसात में जख्मी होने वालों को भी खून देने की जरूरत होती है। ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्लड बैंक्स की जानिब से अवाम से दरख्वास्त की जा रही है कि वो वैक्सीन लगाने से कबल खून का अतिया दे, क्योंकि वो पहले और दूसरे टीके के बाद कम से कम 3 महीनों तक खून का अतिया नहीं दे सकते हैं। मौजूदा हालात के बारे में बताते हुए हैदराबाद ब्लड विनर सोसाइटी की पी सरोजन ने कहा कि हमको औसतन हर रोज खून की फराहमी के लिए कम से कम 50 कॉल्स वसूल हो रहे हैं और खून की तलब में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और हम सिर्फ निस्फ तलब को पूरा कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि इसमें शक नहीं कि खून का अतिया देने वाले सोसाइटी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। प्लेटलेट से मुश्किल है, प्लेटलेट ड्रोन्स हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन्हें इस अमल को खत्म होने तक 3 घंटे इंतजार करना होता है। तेलंगाना में 6,876 नए कोरोना केसेस, 59 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,876 नए केस मंजरेआम पर आए, जबकि 59 अमवात हुई। टेस्टों की तादाद में कमी से अगरचा पॉजिटिव केसों में कमी आई है, लेकिन अमवात में कोई फर्क नहीं आया। महकमा सेहत के मुताबिक 7,432 अफराद सेहतियाब हुए। कोरोना से फौत अफराद की तादाद 2,476 हो चुकी है। एक्टिव केसेस 79,520 रिकॉर्ड किए गए। इतवार और पीर के दरमियान 7,961 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,864 का नतीजा बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद 1,029 केस के साथ सर फहरिस्त है, जबकि अजला में आदिलाबाद 113, कोत्तागुड़म 121, जगतियाल 221, जंगांव 65, भोपालपल्ली 78, गदवाल 96, कामारेड्डी 118, करीमनगर 264, खम्मम 235, आसिफाबाद 84, नागर कर्नूल 190, निजामाबाद 218, वरंगल रूरल 109, वरंगल अर्बन 354 और भुंगिर में 183 नए केस मंजरेआम पर आए। एक नजर वक्फे की ओर। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। भीमगल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माह रमजान मुबारक के पेश नज़र गरीब व मुस्तहिक़ अफराद में रमजान गिफ्ट की तक़सीम। भीमगल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माह रमज़ान मुबारक की पेश नज़र गरीब गुरबा मुस्तहिक़ अफराद में रमज़ान गिफ्ट की तक़सीम। भीमगल के उर्दू कम्युनिटी हॉल में मुस्तहिक़ीन अफराद में हुकूमत की जानिब से रमज़ान गिफ्ट 135 बैग्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से TRS टाउन प्रेसिडेंट लक्ष्मण ने शिरकत की और इनके हाथों तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में भीमगल सदर अंजुमन मुश्ताक हुसैन साहब ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब का, KTR साहब का, महमूद अली साहब का, हल्का असम्बली बालकोंडा के मेले R&B के वजीर प्रशांत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में मोहम्मद अब्दुल नईम, मोहम्मद जावेद अली, हाफिज़ फ़हीम, अंजुम अली, सैयद इब्राहिम व दीगर हजरात ने शिरकत। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुस्तहिक़ीन, गरीब, बेवा, यतीम जैसे लोगों ने
कपड़े तकसीम किए जाते हैं और ये सिलसिला कई बरसों से जारी है। भीमगढ़ मुस्तखर पर 135 बेनिफिशरीज़ हैं और इनमें से तकरीबन तमाम लोगों को दे दिया जा रहा है। बाज़ गोशों से ये शिकायत है कि बहुत से लोगों के नाम छूट गए हैं, लेकिन उनमें वो आप लोगों की या जो है दूसरे लोगों की जो है काहली की वजह से नाम उसमें इंक्लूड नहीं हुए। अब भी गुंजाइश है कि आइंदा साल के लिए आप लोग तहसील ऑफिस से रुजू होकर और मकामी लोगों से मिल के अपना नाम उसमें शरीक करा सकते हैं। हमारे मकामी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अब्दुल अजीज़ वज़ीर प्रशांत रेड्डी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दिलचस्पी लेकर खुसूसन अक़लियतों के ताल्लुक़ से बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं और यहाँ के मकामी चेयरमैन साहब भी जो है अक़लियतों के बारे में और दिलचस्पी लेते हुए इसमें हर मामले में मदद कर रहे हैं। और आखिर में हम जो है हुकूमत तेलंगाना का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इसकी स्कीमों की वजह से बहुत से लोगों को जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है। कोरोना पर काबू पाने लॉकडाउन के सिवा कोई रास्ता नहीं। मौजूदा सूरत हाल को नजरअंदाज करने पर हालात बेकाबू होने का खदशा, जिम्मेदारों और साइंसदानों का तासुर। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ती मामलात को रोकने और इन पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन सिवा और कोई रास्ता नहीं है और हुकूमत को चंद हफ्तों के लिए फौरी असर के साथ मुल्क भर में लॉकडाउन का फैसला करना चाहिए। कोरोना वायरस टास्क फोर्स के जिम्मेदारों के अलावा ICMR के जिम्मेदारों, साइंसदानों और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने मुल्क में कोरोना वायरस के सबब बढ़ रही अमवात को रोकने और मुतासिरीन की तादाद में होने वाले इजाफे को रोकने के लिए लॉकडाउन की हिमायत करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों की जान बचाने और उन्हें मुतासिर होने से महफूज रखने के अलावा घरों की हद तक महदूद रखते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की चैन को तोड़ने के लिए लाजमी है कि मरकजी हुकूमत कौमी सतह पर लॉकडाउन के सिलसिले में अहकाम जारी करे और सख्त लॉकडाउन के जरिए ही कोरोना वायरस की मुतासिरीन की तादाद पर काबू पाया जा सकता है। के माहिरीन की जानिब से की जाने वाली सिफारिशात में वाज़ेह किया गया है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामलों को फैलने से रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन अगर चंद हफ्तों के लिए किया जाता है तो ऐसी सूरत में हालात को काबू में किया जा सकता है और अगर मौजूदा हालात को नज़रअंदाज किया जाता है तो ऐसी सूरत में हालात काबू में नहीं आ सकेंगे और बड़ी तादाद में अमवात होने लग जाएंगी जिन्हें रोका जाना मुमकिन नहीं होगा। मुल्क में तिब्बी सहूलतों और डॉक्टर्स के अलावा दवाखानों और बिस्तरों की तादाद और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लेने के बाद ही साइंसदानों और डॉक्टर्स के साथ कोरोना टास्क फोर्स की जानिब से भी मुल्क भर में लगाए जाने की सिफारिश कर दी गई है और कहा जा रहा है कि मुल्क में मौजूद तिब्बी सहूलतों से ज़्यादा मरीजों की तादाद के सबब हालात अबतर हो चुके हैं और इसके बावजूद अब भी बाज़ इलाक़ों में हालात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन कौमी सतह पर हालात को बेहतर बनाने के अलावा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि मुतासिरीन जो नावास्ता तौर पर दूसरों को मुतासिर कर रहे हैं उन्हें घरों में बंद किया जा सके और जब वो घर की हद तक रह जाते तो ऐसी सूरत में हालात पर काबू पाने में दुश्वारी नहीं होगी। ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో టెస్ట్ మన ప్రభుత్వం టెస్ట్ లిమిట్ చేశారు. లిమిట్ చేసిన కానీ ఇది ఎవరికైతే మనకు సింటమ్స్ అంటే లక్షణాలు కోవిడ్ లక్షణాలు ఏ ఒక్కటి లక్షణాలు ఉన్నా కానీ టెస్ట్ కోసం ఆగకుండా ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో एमसेट के लिए ताहाल 74,000 से ज़ायद दरख्वास्तों का अदखाल, चालान के बगैर 18 मई तक दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत। तेलंगाना एमसेट 2021 के लिए अभी तक 74,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की है। इंजीनियरिंग में 48,000 से ज़्यादा जबकि एग्रीकल्चर और मेडिसिन के ज़मरे में 26,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की। JNTU की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 18 मई तक एमसेट के लिए दरख्वास्तें वेबसाइट पर दाखिल की जा सकती हैं। 19 से 27 में उम्मीदवारों अपनी दरख्वास्तों में तब्दीली और तरमीमात कर सकते हैं। 250 रुपये फ़ीस के साथ 28 में जबकि 500 रुपये फ़ीस के साथ 7 जून तक दरख्वास्त दाखिल की जा सकती हैं। 2,500 की लेट फ़ीस के जरिए 17 जून और 5,000 रुपये फ़ीस अदा करते हुए 28 जून तक दरख्वास्तें दाखिल करने की गुंजाइश रहेगी। एमसेट की फ़ीस 800 रुपये मुकर्रर की गई है जबकि SC ST और माजूरीन के लिए 400 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी।
अगर उम्मीदवार इंजीनियरिंग और मेडिसिन दोनों में शिरकत का ख्वाह हो तो इसे 1600 रुपये अदा करने होंगे, जबकि SC/ST और माजूरीन के लिए 800 रुपये मुकर्रर किए गए। 17 जून था 1 जुलाई उम्मीदवार वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकती हैं। एग्रीकल्चर और मेडिसिन के लिए इंट्रेंस टेस्ट 5 और 6 जुलाई को मुकर्रर है, जबकि इंजीनियरिंग के लिए 7, 8 और 9 जुलाई को टेस्ट रहेगा। सुबह 9 ता 12 बजे और दोपहर 3 ता शाम 6 बजे 2 सेशन में इम्तिहान होंगे। हर साल की तरह इस साल भी एमसेट 160 सवालात पर मुश्तमिल होगा। इस मरतबा इंटरमीडिएट साल अव्वल से 55% और साल दुव्वम से 45% वोटेज दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुव्वम दोनों के लिए 150% दिया जाएगा। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़ एरगटला के महकमे रेवेन्यू दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों के हाथों अक़लियती ख़वातीन को रमज़ान गिफ्ट की तक़सीम अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़ एरगटला के महकमा रेवेन्यू दफ्तर की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रमज़ान गिफ्ट को MPP और ZPTC मंडल TRS पार्टी सदर के हाथों ज़िम्मेदार अफराद की मौजूदगी में अक़लियती ख़वातीन को रमज़ान का तोहफ़ा दिया गया। इस मौके पर इनके साथ मंडल वाइस MPP अशोक, मंडल कोऑप्शन मेंबर अशरफ, तहसीलदार सुरेश व दीगर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने तबादले ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में तेज़ी के साथ इजाफा होने के पेश नज़र तमाम अफराद अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत मास्क पहनने और समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होते हुए हर रोज़ सैनिटाइज़र के ज़रिए हाथों को साफ़ करते रहें ताकि कोरोना वायरस की लहर को रोका जा सके। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी कामयाब नुमाइंदगी के बाइस तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के त्यौहारों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें तोहफ़ाजात फ़राहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल के सरपंच MPDC व दीगर ने शिरकत की। ज़िले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़ एरगटला रेवेन्यू दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तेफादा कुनैनगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़ एरगटला रेवेन्यू दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम चेक्स की फ़राहमी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले MPP ZPTC के हाथों इस्तेफादा कुनैनगान में चेक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ मंडल TRS पार्टी सदर व मंडल कोऑप्शन मेंबर अशरफ, मंडल वाइस MP लावनी अशोक, तहसीलदार सुरेश मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़र क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने का सहरा सिर्फ और सिर्फ KCR को जाने का इजहार किया। गरीब व कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 1,01,16 रुपये देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPDC डॉक्टर EOPRD चक्रधर, दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत। शहर के विनायक नगर में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी अमला व ज़िम्मेदार ओहदेदारों की निगरानी में कोरोना की टीका अंदाजी का मरहला कामयाबी के साथ जारी। शहर के विनायक नगर में वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी अमला व ज़िम्मेदार ओहदेदारान के ज़रिए निगरानी में कोरोना वैक्सीनेशन की टीका अंदाजी का मरहला कामयाबी के साथ मुनाक़िद की जा रही है। इस मौके पर PHC ज़िम्मेदार ओहदेदारान ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि शहर में मुक़ीम 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद की जानिब से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अशख़ास को टीका दिए जाने का इंकशाफ किया। मेडिकल ऑफिसर UPSC विनायक नगर ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ చేస్తున్నాము। కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్, కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నాము। ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఇక్కడికి వస్తే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఆధార్ కార్డ్ ఆధారంగా మేము వ్యాక్సినేషన్ చేసేది। ఇప్పుడు మాత్రం గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి। ఎవరైనా సరే ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని PSCకి వస్తే మేము ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ చేస్తాం। ఇంతకుముందు ఆధార్ కార్డు తీసుకొస్తే మన దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ఫెసిలిటీ ఉండే, ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ఫెసిలిటీ లేదు। ఆన్సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది లేదు, ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే చేసుకొని స్లాట్ బుక్ చేసుకొని ఆ రోజు వస్తే వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వబడుతుంది। निजामाबाद रूरल मंडल के बोरगम P में आज जिले परिषद हाई स्कूल के तिब्बी अमले की जानिब से कोविड टेस्ट कामयाबी के साथ इनेकाद। निजामाबाद रूरल मंडल के बोरगम P में आज जिला परिषद हाई स्कूल के तिब्बी अमले ने कोविड टेस्ट का इनेकाद अमल मिलाने पर करीबी मुकामात पर मौजूद अवाम की भारी तादाद कोविड मुआयना करवाया। इस मौके पर दीगर तिब्बी अमले ने
तबादले ख्याल करते हुए कहा कि कोविड से मुतासर होने पर एहतियाती इक़दाम के मुतालिक शौर बेदारी करते हुए अद्वियात की फराहमी अमल में लगी और इसी तरह से कोरोना वबा से मुतासर अफराद को होम आइसोलेशन में रखने की हिदायत देते हुए बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफे की पेश नज़र तमाम अफराद कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए कोविड-19 के सुलूक ज़ाबित पर अमल पैरा होने का इंकशाफ किया। नंदीपट मंडल में कोरोना वबा के बेतहाशा इजाफे के पेश नज़र मुकामी सरपंच व दही तरक्की कमेटी की जानिब से सेल्फ लॉकडाउन आयद किया गया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर कोरोना वबा के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र एक हफ्ते तक सेल्फ लॉकडाउन लगाने का ऐलान करते हुए तकरीबन एक हफ्ते तक मेडिकल, मिल्क की दुकान को छोड़कर तमाम दुकानात एक हफ्ते तक दीगर तमाम दुकानात को बंद करने के मुतालिक मुकामी सरपंच की जानिब से हिदायत जारी करते हुए का गुज़िश्ता दिनों कबल से ये सिलसिला देही तरक्की कमेटी लगातार जारी रहने की बिना पर ही सेल्फ लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा रहा है। अगर किसी को शदीद ज़रूरत होने पर वो कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए ज़रूरी काम को फौरी निमटा कर घर वापस हो जाए और इसी तरह से तमाम अफराद कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करके कोरोना वबा से खुद और अपने अरकान ख़ानदान को महफूज रखने का इंकशाफ किया। रेंजल मंडल ताड़बिलोली की ग्राम पंचायत में अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। रेंजल मंडल मौजाद ताड़बिलोली की ग्राम पंचायत में सरपंच वेमुला सुनीता टीआरएस पार्टी मौजा सदर और एमपीटीसी के हाथों मुस्तहिकीन को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस अहम तरीन मौके पर ग्राम पंचायत व मजलिस बल्दिया मेंबरान ने बात करते हुए बताया कि गरीब व कमजोर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को अजीम तोहफा करार दिया और कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब तरीन नुमाइंदगी के बाइस मुख्तलिफ मंडलों से वाबस्ता मुस्तहिक लड़कियों को चेक्स की फराहमी अमल में लाने पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में ERS मंडल जनरल सेक्रेटरी मौजा सदर सुधाकर राव, TRS कायदीन लिंगागौड़ व दीगर ने शिरकत की। जिले में कुछ कोरोना मुतासर अफराद के घूमने पर कोरोना केसेस में ज़ायद इजाफा होने का साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने किया इंकशाफ। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि महाराष्ट्र के सरहद पर वाक़े ज़िला निज़ामाबाद में कोरोना की दूसरी लहर के बतदरीज इजाफे पर कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद रियासत में अव्वलिन फहरिस्त पर आने का इज़हार किया। बोधन हल्के असम्बली में कोरोना मुस्बित केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसकी असल वजूहात कुछ अफराद के कोरोना से मुतासर होने के बाद होम क्वारंटाइन ना होते हुए बाहर खुलेआम आज़ाद घूमने के बायस कोरोना वबा की मामलात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। लिहाजा तमाम अफराद अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने के अलावा कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर यानी मास्क का लगाना, समाजी फासले पर अमल करना और सैनिटाइजर के जरिए हाथों को साफ रखते हुए कोरोना वबा को काबू में रखने का इंकशाफ किया। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता साहिबा की एक और हमदर्दी की जीती जागती मिसाल कुछ इस तरह से है। मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा का एक और हमदर्दी की जीती जागती मिसाल कुछ इस तरह से है। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम से ताल्लुक़ रखने वाली 11 साल लड़की रीढ़ की हड्डी के गर्ज में मुब्तला होने के पेश नज़र हैदराबाद निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज होने पर तिब्बी अमले ने न्यूरो सर्जरी करवाने के लिए कहने पर लड़की के वालिदैन ने ट्विटर के जरिए MLC कविता साहिबा के इल्म में लाने के फौरी बाद दिलचस्पी लेते हुए बज़रिए फ़ोन के इस लड़की के वालिदैन से बात करते हुए भरोसा दिलवाने के बाद निम्स तिब्बी अमले से तबादले ख्याल करके तशफ़ी बख्श इलाज फ्राहम करवाने से लड़की की सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देने से सेहतियाब होने पर इस लड़की के वालिदैन ने MLC कविता साहिबा का तहे दिल इज़हार तशक्कुर पेश किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खी पर। महकमा तिब की जानिब से घर घर सर्वे करते हुए कोरोना मरीजों की निशानदही की जाए और आइसोलेशन किट फ्राहम की जाए। तमाम जिला कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की हिदायत। नौ मुंतखबा बोधन बल्दी काउंसिलर डिवीजन 18 की रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात और इनकी इस कामयाबी पर दी मुबारकबाद। अवाम की खिदमत में काम करने की हिदायत।
कोरोना वबा का असर महकमा पुलिस की जानिब से अहमदी बाजार माह रमजान की खुसूसी मार्केट बर्खास्त, गरीब व छोटे ताजिर परेशान। कोरोना से बेखौफ अवाम खरीदारी में मसरूफ। एक जानिब मरीजों व अमवात की शरह में इजाफा तो दूसरी जानिब शहर के कारोबारी इलाकों में अवाम का हुजूम। आंध्र प्रदेश के रहने वाले गरीब वालिदैन ने अपनी लड़की के इलाज के लिए मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता से लगाई मदद की गुहार। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एमएलसी कविता ने ली इलाज की जिम्मेदारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।